Hello, dear students. Today we are going to learn about the genetic code. We have actually learned about two processes. That is, when it is the DNA. From DNA, RNA is formed. RNA, it is formed. That is transcription. Transcription. The codes in the DNA are nucleotides in the DNA. Nucleotides in the DNA, they are copied to form RNA. Simply, the nucleotides from DNA, they are copied to form the RNA. In RNA, now these nucleotides, the nucleotides present in the RNA, the nucleotides present in the RNA are responsible for formation of proteins. That means RNAs or mRNA is now translated into proteins. It is the another step. The bases in the or nucleotides in the RNA, they are directly copied from DNA. That means it is possible that the DNA bases of the DNA, they are copied to form another molecule, that is RNA. But the RNA is now responsible for, or RNA is now translated into proteins. It is a very different thing. That means the molecules or the nucleotides present in the RNA, they are somehow translated. They are, the language of the RNA is translated, language of RNA is translated to form the proteins. And this language, which is present, or the nucleotides present in the RNA, how they are able to code the proteins, how the nucleotides in the RNA code the proteins, or you can say amino acids. It is a very different thing. So the nucleotides in the RNA, they are coding the proteins, they are coding the amino acids. How the nucleotides, or how many nucleotides code for an amino acid? It was a big question, that how RNA is translated into proteins, how these nucleotides, how these chemical bases, they code for an amino acid. Actually, there are only 20 amino acids. There are 20 amino acids present in all living organisms. And these 20 amino acids are responsible for the millions and billions of proteins, तो इसका मतलब है सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर यूकैरियोट्स तक जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे के सारे सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। तो ये
आरएनए जो है इसमें बेसिस जो है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कोड करते हैं इन अमीनो एसिड्स को। तो ये भी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन था, बिग क्वेश्चन था कि आरएनए कैसे जो है ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन। दैट मीन्स ये आरएनए जो है, अगर ये आरएनए है, आरएनए इसमें अपने बेसिस होते हैं, इसमें अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें होगा ए, जी, यू, सी, सी, जी, टी, यू, यू, ए। आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि थाइमीन के बदले यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये मान लो एक एमआरएनए है, मैच्योर आरएनए, मैसेंजर आरएनए विच इज रेडी टू फॉर्म प्रोटीन। ये अब रेडी है, इट इज रेडी टू फॉर्म प्रोटीन, टू फॉर्म प्रोटीन। ये अब रेडी है प्रोटीन बनाने के लिए, ये एमआरएनए। लेकिन ये प्रोटीन कैसे बनाएगा, और ये कोड जो है या जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है, these nucleotides, how they are responsible to code proteins, to code proteins or to code amino acids. Amino acids, what are amino acids? Actually these are the building blocks of proteins, building blocks of proteins, building blocks of proteins. तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 4 प्रेजेंट हैं, देयर आर ओनली 4 बेसिस आर प्रेजेंट और न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। दीज 4 बेसिस कॉन्स्टिट्यूट द आरएनए। तो ये सिर्फ 4 बेसिस जो है जो पूरा आरएनए बनाता है, जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स भी ये ये हो सकते हैं बेसिस। तो सिर्फ दैट मीन्स दीज बेसिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब ये 4 बेसिस कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये अगर हम देखेंगे, पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ एक बेस जो है, if only one base form one amino acid, one or code one amino acid, अगर सिर्फ एक बेस जो है ये अलग तरीके, देयर आर मनी पॉसिबिलिटीज कि अगर एक बेस अमीनो एसिड को कोड करती है, तो सिर्फ ये चांस है कि सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड, ओनली 4 अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड, क्योंकि सिर्फ 4 बेसिस है अवेलेबल हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जो है एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड नहीं करती है। अब अगर हम बोलेंगे कि 2 बेसिस मिलाकर एक कोड बनाते हैं, इफ 2 bases or if combination of 2 bases form code amino acid। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 बेसिस को मिलाकर कोड बनाएंगे, दैट मीन्स AG एक कोड बनाएगा, GC दूसरा कोड बनाएगा, UC तीसरा कोड बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 raised power 2, इसका मतलब है 4 into 4, तो 16 अमीनो एसिड सिर्फ कोड हो जाएंगे। अमीनो एसिड्स सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स कोड हो जाएंगे। तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। तो 4 कहाँ से लाएंगे अमीनो एसिड, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। तो 16 हमने कोड करवाई है, लेकिन 4 जो है बचे हैं, उनको कैसे कोड करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई है कि एक कोडान जो है
या एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड कर सकती है तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड उसको कोड करवा सकती है। अगर दो दो बेसिस मिलाकर कोड बनाएंगे तो सिर्फ 16 अमीनो एसिड उसको कोड करेंगे। तो एक्चुअली ये एक